Hello everyone, welcome to Ansargari. Today we are taking up the news of 5th of December. Starting with the first one, role of civil society and NGO is very important because it not only focuses on beyond government approach but also it connects the people at the grassroots level with the conservation preservation as well as to help them with the financial inclusion in the country. So here the example is of the foundation that has been putting its efforts in rejuvenation of water bodies in Maharashtra. So it is an example of public-private partnership which were used to increase the conservation activity in the Maharashtra region. And how it is promoting? First of all, it is creating a unique solution with regard to Pani Panchayat, for example, deliberation of the ideas at the grassroots level. Then second would be it is focusing not only with regard to the training and capacity building of the farmers, but also it also provides them financial support and capital investment such as machinery for dredging of the canals and as well as the ponds. Other than that, it is also supporting the local communities by giving them adequate training and skills to conserve the water resources. Take example. 30% the cost of hire machine is funded by the government, rest is given by the civil society NGO. 8 Chandra Foundation. Recently, South Korea has seen imposition of emergency, national emergency, which was revoked by the Korean parliament by 190:0 vote. They showcased how the robust democracy works, and if the democratic sentiment is well within at the very grassroots ground level, then it becomes very difficult for the ruling party or as well as the ruling government to impose such kind of arbitrary measures. तो नेशनल असेंबली, तो जो नेम है ये कोरियन प्रेसिडेंट का, उनका यून सुंग योल, he shocked the country by the martial law imposition which was revoked within hours. ऐसा क्यों है? क्योंकि the president has the powers to invoke national emergency, लेकिन at the same time national assembly has the power to revoke it, just like India. इंडिया में बस फर्क है कि president can impose only on the recommendation, written recommendation by the cabinet. तो कैबिनेट टर्म यूज होता है इंडिया में, तो सिर्फ इमरजेंसी के समय यूज होता है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि it was seen as a domestic political rivalry when he wanted to reduce the opposition power and mandate in the nation. Many of the bills, many of the important issues that were taking up against the government, he wanted that to remove from the national consciousness. That is why he imposed such kind of a drastic measures. तो imposition of martial law इंडिया में भी होता है. फॉर एग्जाम्पल आर्ट 352, इंडिया में मार्शल लॉ नहीं बोलते, नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं 352 आर्टिकल के अंदर में, इन विच पार्लियामेंट फंक्शन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी फंक्शन करते हैं, लेकिन द पार्लियामेंट हैज अ पावर टू पास टू लेजिस्लेट द बिल्स इवन ऑफ द स्टेट लिस्ट. आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली एक तरह से इट बिकम redundant because of imposition of national emergency on the basis of external aggression or war. Internal rebellion में आर्टिकल 19 वर्क करता है. President can also make certain kind of laws or parliament can make laws if they want to give the soldiers as well as the security enforcer
लीगल इम्प्यूनिटी अंडर आर्टिकल 34 इन नेशनल इमरजेंसी। तो इंडिया के पास भी स्टैंड नेशनल इमरजेंसी का, यूएस के पास भी है, साउथ कोरिया के पास भी, लेकिन इंडिया में जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द कैबिनेट कमेटी एंड द रिटन फॉर्म 1978 में ऐड हुआ था, और इसको रिवोक कर सकते हैं इंडिया अभी ऑन सिंपल मेजोरिटी। और इंडिया में जब इन्वोक करते हैं नेशनल इमरजेंसी तो इट इज हैज़ टू बी पास्ड अगेन बाय 2/3 मेजोरिटी एवरी 6 मंथ। तो उससे आप एक साथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन रिवोक करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए इन लोकसभा। With regard to economic cost of ban of the plastic must be seen with its ill effect on health. Ottawa Treaty and recently conclusion of the negotiation of several plastic-based treaty have given certain direction that global plastic treaty will be enforced in a very just and inclusive manner to all the countries. However, there are certain problem. For example, oil-rich countries, they are opposing such move. Developed countries is talking about the stringent measures that should be put in for the developing country, whereas developing country is demanding just transition and also common but differential responsibility here also. तो इससे बोलता है प्लास्टिक पोल्यूशन इट इज नॉट ओनली फॉर क्लाइमेट चेंज बट ऑल्सो it should be taking up into the account such as pollution in the sea, land, as well as how it is impacting the overall biodiversity and human health. क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक जो है still it is not under much discussion even in treaty. They are focusing on single use plastic, but they are not talking about microplastic, how it is impacting the overall bloodstream and health of the human. How bioaccumulation and biomagnification it is causing the species, it is degrading the health of the species across the supply chain, across the food chain. तो इस पे एक क्वेश्चन बोलो। India's stand has been that we opposed on the production regulation because according to India, it is believed that this is going to violate the developmental rights of the nations. So again, there needs to be a common ground which is equitable. तो इक्विटेबल प्रमोट करने के लिए ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है, फॉर एग्जांपल बायोप्लास्टिक हो सकता है, यूज ऑफ द सीवीड एंड अदर रिसोर्सेज फॉर मेकिंग ऑफ द प्लास्टिक। थर्ड वुड बी जूट बैग, ऑल्टरनेटिव मेथड, पेपर बैग, जूट। और इंपॉर्टेंट चीज एक और हो सकता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दैट कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड, एक सोल्यूशन हो सकता है। Recently, there has been a conclusion of several elections, for example, Jharkhand, Maharashtra, and previously in 3 months before, Haryana भी हुआ था। तो what is a general trend? The general trend showcases there is an increase in cash transfer mechanism for the women. It is growing popularity as लाडली बहना योजना से लेकर के जो अम्मा योजना, मैया योजना, सब चीज़ विमेन सेंट्रिक है। तो इसमें क्वेश्चन उठता है कि विमेन कॉन्स्टिट्यूएंसी जो स्पेसिफिक होने वाला है आफ्टर डिलिमिटेशन इन 2026, आफ्टर द नेक्स्ट ईयर सेंसस डिलिमिटेशन विल टेक प्लेस एंड उसके बाद ही फिर जो विमेन रिजर्वेशन है वो पास होगा, तो विमेन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट होगा तब उसकी। लेकिन पहले से क्यों प्रमोट कर रहे हैं? तो पहली बात यह है कि इट इज क्रिटिसाइज एज अ एक्सपेंडिचर विच इज इन्फ्लेटिंग द बजटरी बेसिस, इट इज वॉलेटिंग द ओवरऑल FRBM बोल सकते हैं जो मैंडेट है रिगार्डिंग द सब्सिडीज एंड फ्रीबीज। लेकिन एट द सेम टाइम इसका काउंटर क्वेश्चन भी उठता है कि women should be given adequate fund so that they become more financially independent and they can take decision call at a family level. अगर 1000 रुपीज मिलता है तो 15,000 रुपीज अर्निंग, अगर एवरेज अर्निंग, तो 1000 इट इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन 8% to 6% से ऊपर है, तो इट विल रिड्यूस द आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर एंड डिपेंडेंसी ऑन द हस्बैंड। तो कैश ट्रांसफर जो है
it is seen as a welfare mechanism. तो कैश पहले काइंड ट्रांसफर किया जाता था, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, साइकिल्स, फॉर अभी कैश ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि किसी किसी के लिए कैश ट्रांसफर इंपॉर्टेंट है कि वो कैश को कहाँ यूज कर सकते हैं. हो सकता है हेल्थ में, एजुकेशन में, हो सकता है कि वो सिलेंडर खरीदने में यूज करे. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जो कैश ट्रांसफर है. इट इज मेकिंग द women more independent. लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू फोकस ऑन कि कैश ट्रांसफर इट इज नॉट द सोल्यूशन फॉर द women empowerment because it creates a certain kind of paternal system where the women is dependent on the state for welfareism. उसके लिए you have to focus on scaling as well as capacity building of the women. उसके लिए most important thing would be skill training and scholarship program. जैसे विद्या लक्ष्मी स्कीम है अभी, वैसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम प्रमोट कर सकते हैं. तभी जाके स्किल के साथ साथ कैश ट्रांसफर दे सकते हैं, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सकता है. And also from the perspective of increasing the labor force participation rate of women. So care economy and like government has announced the Palna scheme. So that is also important. रिगार्डिंग वेस्ट अफ्रीका में कौन कौन कंट्री आ सकते हैं? तो बुर्किना फासो, चाड, फिर और उस तरफ में गल्फ ऑफ गिनी है तो गनी होगा, आइवरी कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, सीरियलोना वहाँ पर होंगे, गुआना होगा वहाँ पर, माली, तो ये सब नाइजर एंड नाइजीरिया. तो ये बिग कंट्रीज है वेस्ट अफ्रीका में. तो वेस्ट अफ्रीका में जनरली जब कॉलोनाइजेशन पढ़ेंगे तो उसके अंदर में फ्रेंच कंट्रोल रहा है वेस्ट अफ्रीका रीजन के अंदर में, क्योंकि टुडे ऑल्सो न्यू कॉलोनाइजेशन, न्यू इंपीरियलिज्म के अंदर में फ्रेंच हैव बीन एबल टू इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल एंड सोशल एस्पेक्ट इन वेस्टर्न अफ्रीका. तो रिसेंटली वी हैव सीन सेवरल कू इन वेस्टर्न अफ्रीका अगेंस्ट द फ्रेंच सपोर्टेड नेशनल गवर्नमेंट. बुर्किना फासो हो गया, माली हो गया, चाड हो गया, एक्सेट्रा, इवन नाइजर हो गया. तो इंडिया का क्या रोल है, स्ट्रैटेजिक फोकस क्यों है वेस्ट अफ्रीका में? तो इंडिया है फोकसिंग ऑन ईस्ट अफ्रीका, फॉर एग्जांपल डिबाउती, इरिट्रिया, इथोपिया, केनिया, मेडागास्कर. साउथ अफ्रीका वी हैव सीन, नॉर्थ अफ्रीका में भी लिबिया, इजिप्ट हम लोग फोकस करें. लेकिन वेस्ट अफ्रीका में भी नाइजीरिया में गए वहाँ पर, और पहली बार नाइजीरिया में उनका विजिट था इतने साल में, 4th विजिट था आई थिंक, एंड पहला विजिट था आफ्टर 2014. तो इंडिया नाइजीरिया टाइज इट इज ग्रोइंग बिकॉज नाइजीरिया इज वन ऑफ द पावरफुल कंट्री इन अफ्रीका रीजन. इट इज मोस्ट पॉपुलस और इट इज इंक्रीजिंग इन GDP, 1 ट्रिलियन से ऊपर GDP है उनका. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कि नाइजीरिया के लिए भी कि इंडिया इज नेचुरल पार्टनर टू इट. तो डिफेंस सेक्टर के अंदर में इंडिया इज फोकसिंग ऑन सप्लाइंग डिफेंस सेक्टर, कंसेशन लोन दे रहे, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, एंड नाइजीरिया को हेल्प कर रहे हैं हेल्थ, एजुकेशन, टेररिज्म ट्रैकिंग, पायरेसी, क्योंकि बोथ कंट्री फेस टेररिज्म. वो बोको हराम, इंडिया में कश्मीर इशू है. नाइजीरिया is also increasing capacity building of the citizen through use of technology. तो इंडिया हेल्प करने जा रहे हैं डिजिटेक, आधार और अदर डिजिटल एस्पेक्ट प्रमोट करने के लिए. दूसरा इसमें नाइजीरिया की बात होता है, नाइजीरिया ऑल्सो हैज चाइनीज कंपनी. चाइना हैव फंडेड ओवर $47 billion इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अक्रॉस चाइना, अक्रॉस द कंट्री. इंडिया कितना किया अभी तक में ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर मिला करके $20 billion से ऊपर. इंडिया कितने डायस्पोरा है? तो अप्रॉक्सीमेटली 50,000 डायस्पोरा है वहाँ पर. तो और बहुत सारी कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा पावर्स, टाटा भारतीय एयरटेल हो गए, फिर और भी ट्रकिंग कंपनी का अशोक लेलैंड हो गए, बाकी सब जो. तो टू reduce the impact of China and influence of China and to increase its own influence in Western Africa, Nigeria becomes very important because Nigeria is the sole big country in the Western Africa region which is powerful, which have the defense technology capability. So it can use Nigeria as a
connectivity with the Western African region. तो जो नाइजीरिया वहाँ पर डीप सी पोर्ट है 2023 में चाइना है फंडेड लेकी लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट इन वेस्टर्न अफ्रीका है. वैसे चाइना इज ऑल्सो सेटिंग अप मोबाइल टावर 27,000 मोबाइल टावर माइनिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं. लिथियम प्रोसेसिंग प्लांट पे इन्वेस्ट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. तो स्लोली चाइना इंक्रीज कर रहा है तो इंडिया भी इंक्रीज कर रहा है. तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है. नाइजीरिया के लिए भी कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई द इनकम एंड आल्सो द रिसोर्सेज एंड इंडिया विल आल्सो इंक्रीज इट्स कैपेसिटी एंड इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न अफ्रीका रीजन थ्रू नाइजीरिया. सो ग्लोबल साउथ और अफ्रीकन कनेक्ट के लिए नाइजीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है. So we have discussed two main countries here. One Nigeria, and yesterday or day before yesterday we talked about Mauritius. That is also a gateway to again strengthen India-Africa relations. मॉरिशस हो गया कि इंडिया एक्सटेंडेड नेबरहुड ब्लू सी नेबरहुड. नाइजीरिया हो गया वेस्टर्न अफ्रीका में. भूटान किंग जिम के वांगचुक टू पे 2-day विजिट इन टू इंडिया. तो भूटान इंडिया रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये विजिट है. क्यों? क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग भूटान फॉर एग्जाम्पल इन एनर्जी सिक्योरिटी, साइनिंग द इम्पॉर्टेंट डील्स विद भूटान ऑन गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी प्रोग्राम, सिस्टर सिटी कनेक्ट गेलेफू एंड बनारस एक्सेट्रा गुवाहाटी. फिर कनेक्टिविटी वाया रोड एंड रेलवेज BBN पर नेगोशिएशन चल रहा है अभी भी, जो अभी भूटान ने इसको सपोर्ट नहीं किया था पहले. दूसरा विद रिगार्डिंग सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन with regard to डोकलाम एंड सक्तेंग जो इशू था फॉर एग्जाम्पल इन अराउंड सराउंडिंग फॉरेस्ट रीजन इन भूटान विच चाइना वॉज क्लेमिंग. तो इंडिया इज फोकसिंग टू इंक्रीज इट्स रिलेशनशिप एंड influence in Bhutan to secure it from China and also under the neighborhood first policy. देखो चैस वोटर parliamentary panel, how it Indian foreign diplomacy, it is not only having the important role of MEA and the government but also the parliament. तो एग्जाम्पल है इसका कि पार्लियामेंट्री पैनल हाउ इट इन्फ्लुएंसेस, हाउ इट चेक्स ऑन आर्बिट्रेरीनेस और हाउ इट कंट्रोल्स रेगुलेट्स द डायरेक्शन ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी. तो ब्रीफ द पार्लियामेंट्री पैनल. इससे जो पार्लियामेंट जो गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी है विद रिगार्ड टू पार्लियामेंट एंड द इंपॉर्टेंट मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट इन पार्लियामेंट्री पैनल, दिस शोकेसेस कि how the people's mandate is enforced in foreign policy. तो अनफ्रेंडली पॉलिसीज पर उन्होंने ब्रीफ किया रिगार्डिंग टू कनाडा, चाइना एक्सेट्रा. पार्लियामेंट्री पैनल में कांग्रेस के भी होते हैं और बाकी ऑपोजिशन पार्टी के भी होते हैं मेंबर और रूलिंग पार्टी के भी होते हैं. दिस जो पार्लियामेंट्री पैनल होता है इट बिकम्स अ वेरी टूल फॉर बाई पार्टीशनशिप इन फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज इट क्रिएट्स अ overall trust mechanism between the government and the parliament if it is on the same page or not. When we discuss regarding conservation and preservation of the biodiversity, agroforestry play a very important role because it creates an incentive mechanism for the farmer to grow certain species of the trees in their farmland so that the बायोडाइवर्सिटी कैन बी रेजुवेनेटेड. लेकिन रिसर्च अभी पाया गया जिसमें बहुत फोकस किया कि अगर वी आर फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी देन इट इज इम्पैक्टिंग द लोकल एंडेमिक स्पीसीज ऑफ द फ्रॉक्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि वॉट वी आर प्लांटिंग, विच ट्रीज वी आर प्लांटिंग, इट क्रिएट्स अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लोकल वाटर बॉडीज एज वेल एज लोकल बायोडाइवर्सिटी इन द सॉइल एंड ऑल्सो एट अ वेरी ग्राउंड लेवल, जिसमें इसमें लीचेज हो सकते हैं, ऑर्चिड हो सकते हैं, बाकी जो स्मॉल ग्रास हो सकते हैं, उसके जो बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होता है. तो हमेशा हम लोग व्हेन वी डिस्कस रिगार्डिंग द कंजर्वेशन वी टॉक अबाउट ट्रीज, लेकिन ट्री के बियॉन्ड भी तो कंजर्वेशन होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉडीज हो गया, ऑर्चिड्स हो गया, सॉइल्स हो गया, सॉइल से रिलेटेड सॉइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में जो ऑर्गेनिक स्पीसीज हो गए उनका, तो इस पर बात नहीं करते. सो
when we are taking up the importance of the agroforestry, we have to include all these aspect into it. फॉर एग्जाम्पल प्लेटो को आप पैडी फील्ड बना देंगे या पैडी फील्ड को आप फिल करके वापस से प्लेटो बना दें तो इट क्रिएट्स इम्बैलेंसेस एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी पर. Regarding FASTag, this year question was also put up regarding how the FASTag works. RFID use होता है and it scans the overall chip that is there in the vehicle and उससे FASTag कलेक्ट हो जाता है ऑनलाइन, वॉलेट से कनेक्ट होता है. तो जो FASTag था, more than 90% of the payment were using the FASTag. 10 करोड़ टैग इशूड हो चुका है अभी तक में और 2.4 lakh crore has been collected till now. Or slowly we are moving towards from the FASTag to the GPS based system. क्योंकि बहुत जगह देखा गया FASTag काम नहीं करता है, मैकेनिकल अप्रोच है वो. फास्ट कुछ काम नहीं करता है तो इट क्रिएट्स अ लाइन एंड ऑल्सो कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन. तो GPS बेस्ड मैकेनिज्म होगा तो फास्टर कलेक्शन होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगा. लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू फोकस ऑन डेटा प्राइवेसी कि ट्रैकिंग किया जाएगा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. तो अगर वो प्राइवेट कंपनी या किसी और के हाथ पे रहेगा तो हो सकता है कि उसको इलीगली यूज किया जाए. तो वी हैव टू फोकस ऑन डेटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन लॉ, अंडर द प्रोटेक्शन लॉ. बोलो. FASTag is also one of the examples of India's digital public infrastructure, which we often do not talk about. UPI, Jam Trinity, ये सब है, but FASTag is also one of them. And also toll-based GPS system is also possible in India because now we are not reliant upon the GPS system. We have our own NAVIC system, or which is also known as the Indian Regional Navigation Satellite System. So that is also a possibility. Important है when we discuss regarding the research security, we talk about कि research funding should be there, research security protection and capacity building of the skills that are available to the trainers and researchers and scientists. उसे के लिए अनुसाधन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हो गया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो गया एंड ऑल अदर काइंड्स ऑफ स्कीम्स, कीरन स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम्स. टॉप लेवल में एमयू साइन करते हैं आईआईटी और बाईआईएम और बिग इंस्टीट्यूशन के साथ. तो रिसर्च फंडिंग इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि इट क्रिएट्स अ लैब, स्पेसिफिक लैब इन एवरी इंस्टीट्यूशन विच इज सपोर्टेड बाय द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. लेकिन इसमें बोलता है कि हाउ द साइंस इज अफेक्टेड. तो पहली बात होता है कि क्या जो रिसर्च है इट इज मार्केट अवेलेबिलिटी, मार्केट वायबल और नॉट. ये पहला क्वेश्चन उठता है इफ द कंपनी इज प्रमोटिंग रिसर्च. अगर मार्केट वायबल है तो दे विल सपोर्ट, अगर नहीं है तो इट क्रिएट्स अ लॉ इशू, इम्पेडिमेंट विद रिगार्डिंग टू द फाइनेंसेस. तो फंडामेंटल टेंशन होता है दोनों के बीच में, कमर्शलाइजेशन एक्सपेक्ट में कि प्रॉफिट मेकिंग होगा कि नहीं होगा, आईपी इशू का होगा कि नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल जो वोल्वो थे, दे क्रिएटेड फर्स्ट पेटेंट विथ रिगार्डिंग टू सीट बेल्ट. लेकिन सीट बेल्ट पेटेंट को हटा करके उन सब पे अटैप्ट वो छोड़ दिया इसको. अब सब जो कार से ये दे यूज सीट बेल्ट. वैसे बैटरी टेक्नोलॉजी ओपन सोर्स है, टेस्ला के अंदर में भी एनीवन कैन यूज. तो वी कैन से कि जो पेटेंट सिस्टम है इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रॉफिट मेकिंग एंड मोनोपोली एक्टिविटी इन रिसर्च विच इज सपोर्टेड बाय द कमर्शियल इंस्टीट्यूशन सच एज प्राइवेट सेक्टर. लेकिन डिसीजन मेकिंग होता है सीईओ का बाकी सब विद रिगार्ड टू कि हाउ द रिसर्च शुड बी, डायरेक्शन क्या होना चाहिए. तो लास्ट जो डिसीजन मेकिंग होगा वो प्राइवेट सेक्टर का रहता है विद रिगार्ड टू लैब्स. इसी कारण देयर इज अ बेसिक फंडामेंटल टेंशन बिटवीन द लैब्स, रिसर्चर एंड द जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रहते हैं. देन दूसरा क्या होता है कि इफ द रिसर्च इज टेकिंग मेजर और नॉट, एडिक्वेट मेजर और प्रोटोकॉल और नॉट. क्योंकि हम लोग देखें वेरियस क्वेश्चन वर रेज रिगार्डिंग द क्लिनिकल ट्रायल एंड अदर एक्टिविटी if it was violated or not during the making of the COVID vaccine by the Pfizer and AstraZeneca. So many of the scientists they strike deal with the company और वो अपने साथ लेके चल जाता है रिसर्च और it creates a kind of a conflict between the companies.
एंड ऑल्सो अनएथिकल प्रैक्टिसेस होता है, होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो जो प्रोटोकॉल फॉलो होता है कि नहीं, ड्यू प्रोसेस फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो क्वेश्चन होता है। ऐसे कोविड-19 ऐसे में हुआ था। दूसरा, रिसर्च जो है क्या वो ह्यूमन सेंट्रिक है क्या कमर्शियल सेंट्रिक है, एक बेसिक टेंडेंसी रहता है यहाँ पर कि इफ, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ वी आर फोकसिंग मच मोर ऑन ह्यूमन सेंट्रिक तो उससे कमर्शियल वायबिलिटी कम होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगा और लॉन्ग टर्म में कंपनी बैंकरप्ट हो सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रिसर्च है उसके अंदर में स्मॉल इंप्रूवमेंट करके ड्रग्स बनाया जाता है और उसको एवरग्रीनिंग और पेटेंट किया जाता है। So it also impacts the overall human nature of the research system. At the end of the day, there is a very important mechanism to generate revenue. लेकिन दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि कोलैबोरेशन गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन का भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन के अंदर में फॉर एग्जाम्पल DRDO हो गया, इंपॉर्टेंट लैब्स इन इंडिया, ICAR हो गए, ICMR हो गए, फिर तो FSL कहते हो हैं गए, कि अलग अलग। तो हम्म, लॉन्ग टर्म में वो ह्यूमन सेंट्रिक और सोसाइटल बेनिफिट को अपहोल्ड करते हैं। So development of research and development ecosystem is very important for three pillars, like for socio-economic and equitable growth, for technological advancements and global competitiveness. So the challenge is that right now in India, only 0.7% of the GDP is allocated to R&D compared to other advanced countries, like in case of US, China, it is close to 2.5 to 3%. Israel, it is 5%. Then sources of funding in India, it is again dominated by the public sector, and gradually it is being seen that share of private sector is it is increasing. So government sector funds 55% of the R&D activities, and major institutions again Department of Science and Technology, ICMR, DRDO has been mentioned by you. And dominant sectors in case of India for R&D is defense, space, and pharmaceuticals. So the currently emerging sectors includes artificial intelligence, renewable energy, and biotechnology, or which are also known as the sunrise sector also. हाँ, under layers of soil 80 sandstone pillars and slice of Patna modern era past. तो I have visited here कुम्हर पटना के अंदर में। इट इज ए फर्स्ट रेप्लिक और फर्स्ट इंसिडेंट्स वहाँ मिला था विद रिगार्ड टू द 80 पिलर हॉल विच विच वर कंस्ट्रक्टेड बाय द अशोका। और उस समय तो अर्लियर द जो पॉन्ड जो वहाँ पे थे इट इन कंसिस्टेड ऑफ सेवरल पिलर्स, wooden pillars, but now it has been submerged into the pond for the protection of it. और उसके साथ साथ अदर एडिक्ट्स में मिले, यहाँ पर एडिक्ट भी ब्रह्मी स्क्रिप्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है विच। और दूसरा धन्वंतरी के जो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल है वो भी वहाँ पर दिखा। तो दिस फोकसेस कि हॉस्पिटल सिस्टम आज से नहीं था, वो पिछले 2000 साल के पहले भी था। तो और प्लस बहुत सारे कॉइन्स ही वहाँ मिला है विथ टॉक्स अबाउट इंडो ग्रीक इन्वेजन, हुना हंस इन्वेजन्स एक्सेट्रा। तो कुम्हर बहुत इंपॉर्टेंट साइट है विथ रिगार्ड टू द मॉडर्न पीरियड। वहाँ पर 80 पिलर हॉल हो गए, अलग अलग कॉइन्स मिलते हैं मॉडर्न पीरियड के, मॉडर्न नहीं बाद के पीरियड और गुप्ता के समय में कॉइन्स मिलते हैं। दूसरे कि हॉस्पिटल का वहाँ पर एक लोकेशन है जो दिखाता है कि कैसे आयुर्वेदिक और बाकी सब जो फिजिशियन थे वो कैसे रोल प्ले करते। थर्ड टेराकोटा आर्ट और स्मॉल जो टॉयज है वो भी मिले, वुडन स्ट्रक्चर मिले 80 पिलर हॉल के, एडिक्ट्स मिले, पिलर एडिक्ट मिले, पॉलिश्ड मिले वहाँ पर। तो ये अलग अलग। तो मोदी जयशंकर डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन ऐसा क्यों बोलते हैं, मुंड्रो डॉक्ट्रिन हो गया 19th सेंचुरी में विथ फोकस ऑन आइसोलेशन। फिर विल्सन डॉक्ट्रिन हो गया, फिर हेनरी किसिंजर एंड रोनाल्ड रेगन डॉक्ट्रिन इन US पॉलिसी व्हेन इट वाज फोकस ऑन इंटरवेंशन। वैसे ही हम लोग बात करते हैं पंचशील और नेहरूवियन एरा ऑफ फॉरेन पॉलिसी व्हेन वी फोकस ऑन दैट। तो मोदी और जयशंकर डॉक्ट्रिन है क्या? तो वी आर नॉट कमिटिंग ऑन सर्टेन काइंड ऑफ आइडियोलॉजी, वी आर कमिटिंग to the welfareism and socio-economic political development of the people
एज अ होल. फॉर एग्जाम्पल डायोस्पोरा लिंकेज, इसलिए हम लोग डायस्पोरा के साथ रिलेशन बढ़ा दिए कुछ साल में. वी आर फोकसिंग ऑन we are focusing, we can say we are focusing on multilateral institution and its reform. We are collaborating with the countries on across several geopolitical spectrum ideologically. So Jayashankar Modi doctrine is based on self-reliance, multi-alignment rather than non-alignment, and also increase the capacity building of the country itself, not becoming part of the alliance system but becoming a part of the ग्रुपिंग. क्वाड हो गया, I2, U2 हो गया, एक्सेट्रा. on the basis of case by case specific we can say. तो ये मोदी जयशंकर डॉक्टर ने. व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर बनता हिमाचल. जिसमें प्राकृतिक खेती करने वाले किसान से गेहूं 40 रुपये, इसका मतलब एमएसपी दिया जाएगा. एट द सेम टाइम प्रोक्योरमेंट भी किया जाएगा. प्राकृतिक खेती से 1.98 लाख किसान बागवान 35,000 हेक्टेयर भूमि पर जुड़े हुए. तो मतलब कि 2 लाख किसान दे आर पार्टिसिपेटिंग इन एग्रो फार्मिंग, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग. प्लस एक ओवरऑल ब्रांड सिस्टम को क्रिएट किया है हिम भोग, हिम मक्की आटा, हिमाचल बेस्ड मक्की आटा. तो इट क्रिएट्स अ ब्रांड वैल्यू इन द ओवरऑल सप्लाई चेन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. कास्ट सेंसस, व्हाई इट इज यूजफुल एक्सरसाइज, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. तो कास्ट सेंसस इट इज अंडर द रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. कास्ट सेंसस के अंदर में नेम नहीं रहता है, उसके अलावा सब चीज रहता है. कास्ट, बर्थ, कितने बच्चे हैं, गाड़ी कितने है, इनकम कैसा है, हर एक चीज रहेगा, बस नेम नहीं रहेगा और एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं रहेगा. तो कास्ट सेंस जो बेसिकली सेंसस है उसके अंदर में कास्ट सेंसस है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट क्रिएट्स अ सर्टेन काइंड ऑफ अ डेटा सिस्टम विच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर टारगेटेड बेनिफिशियरी इन सेवरल एरियाज. मिक्स्ड कास्ट है, आउटकास्ट भी है और अदर कास्ट है, जिसके कारण जो वेलफेयरिज्म है पता लग सकता है कहाँ पर जरूरत सबसे ज़्यादा देने का. तो इक्विटी प्रमोट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. इंटर रीजनल डिस्पैरिटी है उसको कम करने के लिए. 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था रिगार्डिंग द ओबीसी कास्ट. SC ST का हुआ है बाद में भी, लेकिन ओबीसी के लिए 1931 में हुआ था लास्ट, उसके बाद कभी अभी तक में नहीं हुआ. SCBC के अंदर में 47 लाख कास्ट एंड सब कास्ट है. तो ये दिखता है कि कितने अधिक सब कास्ट है, उसको कैसे इंक्लूड करेंगे, ओबीसी के अंदर कैसे इंक्लूड करेंगे, कैसे उनको वेलफेयरिज्म मिल सकता है. हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट कुछ रीजन के अंदर में ओबीसी है, लेकिन कुछ रीजन के अंदर में वो जनरल कैटेगरी के अंदर है. तो कैसे डिटरमाइन होगा, मोबिलिटी कैसे डिटरमाइन होगा. तो पॉलिसी मेकिंग में इसलिए कास्टेशन इंपॉर्टेंट है. फर्दर थर्ड जेंडर है उनको कैसे जोड़ेंगे कास्ट के अंदर में, क्योंकि उनको ओबीसी कंसिडर किया जाता है रिजर्वेशन के अंदर में. तो अगर कोई जनरल कैटेगरी है, किन्नर, थर्ड जेंडर, तो ओबीसी के अंदर में कैसे आएंगे. तो एक क्वेश्चन उठता है. द डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी क्लेम, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे जो जनरल कास्ट है, कुर्मी हो गए, मराठा हो गए, पटेल हो गए, वो आर डिमांडिंग रिजर्वेशन अंडर द ओबीसी. तो डाउनवर्ड कास्ट मोबिलिटी, कुछ जगह पे सोशल मोबिलिटी इंक्रीज होते आ रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल जो पहले मार्जिनल कास्ट है वो धीरे धीरे मिडिल कास्ट ऑर्डर में आ रहे हैं, लेकिन अभी भी ओबीसी में है. कुछ कास्ट इनका सरनेम सेम है हर एक कास्ट के अंदर में, लेकिन कास्ट अलग है, सरनेम सेम होने वाला, तो उसमें भी एक चैलेंजेस क्रिएट होता है. तो एक वेलफेयरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में भी देखा जाए, सोशल मोबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए, पॉलिटिकल राइवलरी, पॉलिटिकल नेगोशिएशन एंड कॉम्पिटिशन में अगर देखा जाए तो कास्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ रोल ऑफ सॉलिडारिटी, एज अ रोल ऑफ डिवीजन इन द सोसाइटी. तो दोनों एस्पेक्ट है कास्ट का. दैट इज वाई इट विल कास्ट सेंसस इंपॉर्टेंट है, और कास्ट सेंसस ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म से थ्रू यूज होना चाहिए
एस, और ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे सेंसस बात हुआ, जैसे बिहार में बात हुआ. So other challenges includes चलो. politicization of data, the complexity and sensitivity of the data also, because then there are certain quarters who resist it also, like maybe people belonging to the general category and past experiences, so learnings from them. For example, socio-economic caste census, which was done in 2011. So there is criticism that there are a lot of errors, inconsistencies in 8 that, करोड़ lack of यहाँ पर. proper categorization on that basis. So we require more transparency, awareness and sensitization, use of technology. We can use again artificial intelligence for accuracy, and periodic review should be done, and balanced policy making on the basis of that data. So that should be not the complete or that shouldn't be like relied upon 100% manner. So it can be one component of policy formulation. When we discuss regarding the फायर ऑडिटिंग सिस्टम, क्या हॉस्पिटल के अंदर में जो बच्चे का डेथ हुआ झांसी में, 11 बच्चे डेथ हो गया क्योंकि वहाँ पर पर्टिकुलर फायर रिड्रेसल सिस्टम नहीं था, मिटिगेशन प्लान नहीं था, एक ही गेट था, फायर प्रूफिंग नहीं किया गया था. तो इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर होल सोसाइटी. तो बोल सकते हैं कि क्या जो हॉस्पिटल है दे आर इक्विप्ड और नॉट. तो ऐसा देखा है कि 5 साल में 11 फायर 107 डेथ हुआ है, लेकिन कुछ कम ही एक्शन लिया गया. इल मेंटेन्ड और इल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, प्लस फायर प्रूफिंग नहीं किया जाता है, लैक ऑफ फंडिंग है, बिल्डिंग कोड वायलेशन है, लैक ऑफ ओवरशॉट है जो दिखाया जाता है, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता है, CO2 का जो सिलेंडर होता है इट इज़ नॉट यूजेबल, वो एक्सपायरी होता है बहुत साल के बाद रख करके. तो देर इज नीड फॉर सीरियस आउटलुक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल एज अ होल. तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फायर इंजीनियर का कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ऑल्सो बिल्डिंग जो फायर ऑडिटिंग होना चाहिए. एट द सेम टाइम चीफ मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं दे शुड बी अकाउंटेबल. तो चीफ हजार्ड ऑफिसर होना चाहिए जो सिर्फ हजार्ड पे बात करे, बायो हजार्ड, फायर हजार्ड एक्सेट्रा. तो मेडिकल ऑफिसर के साथ साथ एक और एक बॉडी होना चाहिए जो चीफ हजार्ड ऑफिसर, वो बाकी से म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, बायो सेफ्टी हो गया, एट द सेम टाइम फायर हो गया, सब पे वो देखे. दूसरा NOC जो होता है थर्ड पार्टी से लेना चाहिए ताकि थर्ड पार्टी उसको ऑडिट कर सके. और जो हमारे यहाँ फायर ब्रिगेड सिस्टम है उसको ऐसा देखा जाता है कि सेंटिंग पोस्टिंग है एज कंपेयर टू कि वहां पर भी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं. जब भी ट्रांसफर होता है DG फायर सर्विसेज तो ऐसा क्वेश्चन उठता है कि सेंटिंग हो गया उनका. तो वी हैव टू सी एवरी पब्लिक यूटिलिटी सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस, और उसी डेडिकेशन और स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए, तभी जाके रिफॉर्म आ सकता है इन फायर ब्रिगेड सिस्टम में भी, और ओवरऑल फायर्स को कैसे रोक सके हर एक एस्पेक्ट में. वो है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी लेवल. Maharashtra model in terms of fire safety. So they have Fire Safety Act is there, and Mumbai Fire Brigade, that is important. So they are one of the most well equipped and advanced like fire brigades which are there in India. They have high capacity water pumps are there, aerial ladders are there, drones are being used by them, and specialized training programs for firefighters is being focused upon. Then they do periodic fire audits are being done specifically for the high-rise buildings or industrial units and the public places. And awareness programs are being also run. So there the participation of NGOs is also important. And emergency response system is also well integrated with the disaster management authority. Production cap, chemical ban, why global plastic rating collapsed. So we have taken up कि $430 million tons of plastic produced annually. 2/3 खाली short lived होता है, which become waste. 11 million ton enters into the ocean. 46% it is in the landfill. तो negation fall होता है क्योंकि 3 एस्पेक्ट पर इंडिया बात करते हैं कि फोकस ऑन जस्ट ट्रांजिशन,
डायरेक्टली आप नहीं बोल सकते, प्रोडक्शन कैप नहीं लगा सकते। क्योंकि सऊदी बोलते हैं विथ रिगार्डिंग टू द कि रिड्यूस करेंगे तो ओवरऑल उनका इम्पैक्ट होगा।